Hey there, this is your fantastic Arav, and I welcome you all to an amazing series of my podcast, Ring the Bell, to alarm our present for our future. We all are facing climate change issues. Some acknowledge these issues and some don't. Those who acknowledge these issues try to get the solutions. In this Ring the Bell series, I will bring you stories of those people who are forerunners in discovering the solutions to make this earth healthy for each and every one of us. So let's get started. India is endowed with extraordinarily diverse and distinctive traditional water bodies found in different parts of the country, commonly known as ponds, tanks, lakes, talabs, and others. They play an important role in maintaining and restoring the ecological balance. They act as sources of drinking water, recharge groundwater, control floods, support biodiversity, and provide livelihood opportunities to a large number of people. In the last few decades, water bodies have been under continuous and unrelenting stress, caused primarily by rapid urbanization and unplanned growth. Encroachment of water bodies has been identified as a major cause of flash floods in Mumbai in 2005, in Uttarakhand in 2013, in Jammu and Kashmir in 2014, and in Chennai in 2015. Around 80% of India's water is severely polluted because people dump raw sewage, silt, and garbage into the country's rivers and lakes. When we see such conditions of the water bodies nowadays, most of us either get sad or worried regarding these issues, but only some of us try to act upon these issues. And one of them is our guest today. He is the one who has not only revived the dirty wetlands and ponds and planted trees, but also changed the mindset of the local people to learn their responsibilities towards the environment. He is the founder of SAFE, Social Action for Forest and Environment, an initiative which is his backbone in the war against those who destroy the environment. He is the one and only Vikrant Tongar. Firstly, I would like to congratulate you, sir, on your recent achievement of receiving the National Water Hero Award 2020 by Government of India. Hope you are well, sir. Thank It is a bliss for me to have you as a guest on this episode. Sir, our audience is waiting for you to tell us more about yourself and what inspired you to start this journey. thank you, Arav, for congratulations regarding award. और जहाँ तक जैसा कि आपने मेरे बारे में बताया, मैं विक्रांत तोंगड़ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, और हम लोग अराउंड 2010 से एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, वाटर रिलेटेड इश्यूज के ऊपर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू, लोकल वॉलंटियर्स के सपोर्ट से मल्टीपल एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये जो इंस्पिरेशन मिली 2010 के आसपास, क्योंकि हम लोग ग्रेटर नोएडा बेस्ड है, जो कि एक उभरता हुआ शहर है, नया शहर डेवलप हो रहा है। वहां पर जिस तरह से एनवायरमेंटल इश्यूज आए सामने, जैसे ग्रीनरी लगातार कम हुई, अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीशन होना शुरू हुआ और लैंड यूज चेंज हुआ काफी तेजी से, तो मल्टीपल एनवायरमेंटल इश्यूज वहां खड़े हो रहे थे। तो और लोगों को अवेयरनेस की काफी कमी दिखाई दी
क्योंकि लोग पानी की काफी बर्बादी कर रहे थे, वाटर बॉडीज डस्टबिन में कन्वर्ट कर हो चुकी थी, वहां चारों तरफ प्लास्टिक दिखाई देने लगा वाटर बॉडीज में। तो इन सब इश्यूज को देखते हुए हमें लगा कि कुछ सिटीजन्स को और खासकर यूथ को इसके लिए आगे आना चाहिए। तब हमने एक फोरम ये इस्टेब्लिश किया जिसे सेफ कह सकते हैं। और जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट था जिसने हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट किया या हमें मजबूर किया इस कैंपेन को स्टार्ट करने के लिए, वो था ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। क्योंकि उस दौरान हर दूसरे घर में समरसेबल के का यूज हो रहा था और अननेसेसरी ग्राउंड वाटर को वेस्ट किया जा रहा था, डोमेस्टिक पर्पज में भी और इंडस्ट्रियल पर्पज में भी और रियल एस्टेट भी। बेसमेंट कंस्ट्रक्शन करने के लिए दिल्ली एनसीआर में या जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क है उनमें भी ग्राउंड वाटर का यूज किया जा रहा था, जिस वजह से ऑफिशियल रिपोर्ट्स ये आने लगे थे कि 2 मीटर पर ईयर का डिप्लीशन रेट है ग्राउंड वाटर का, जो कि अनसाइंटिफिक है, एबनॉर्मल है। तो उस वजह से हमें लगा कि इस तरह के इश्यूज को डील करने के लिए हमें सोसाइटी की ओर से आगे आना होगा, केवल पॉलिसी मेकर्स या एडमिनिस्ट्रेशन या कोर्ट के ऊपर इस काम को नहीं छोड़ा जा सकता है। फिर हम लोगों ने इनिशिएटिव्स लेने स्टार्ट किए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रीज को बचाने के लिए, और प्लांटेशन ड्राइव्स वगैरह भी हमने शुरू किए और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़े, जिसमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए। His organization's name is Social Action for Forest and Environment. SAFE is working on multiple environmental issues through community participation since 2010, when he started feeling the environmental problems arising in his city and the lack of awareness about these issues among the people. It triggered him to start his initiative, SAFE. He first started with searching about the underground depletion. The official reports have stated that the groundwater is depleting at the rate of 2 meter every year, which was abnormal. Then he took the responsibility of solving this problem because he believes that the court and the administration cannot solve this problem alone and needs the support of the citizens of India too. Thank you, sir, for sharing your wonderful and hard work with us, for solving the environmental problems in our society. You are truly an earth warrior. The greater the obstacle is, the more glory in overcoming it. Sir, what sort of obstacles did you face throughout your journey from the beginning? जहां तक हर्डल्स की बात है या प्रॉब्लम्स की बात है इस पूरी जर्नी में, और बहुत सारे इश्यूज इसमें सामने आए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं मिल पाता। जब आप एक वेल नोन एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट या वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट हो जाते हैं तो आपको काफी सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब मीडिया में आपका इशू कवर होने लगता है, मीडिया आपकी बातें सुनने लगता है, तो तब एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करना शुरू करता है कई बार। लेकिन स्टार्टिंग में उनकी ओर से एक तरह से डराया जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई स्टार्टिंग में। उसके बाद अभी चीजें या सिचुएशंस काफी चेंज हुई है और अभी हमारे सामने जो सबसे बड़े इश्यूज आ रहे हैं, रिसोर्सेज के इश्यूज सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि रिसोर्स डेवलपमेंट और इसके अलावा पब्लिक पार्टिसिपेशन उतना नहीं हो पाता जितना पॉलिटिकल और दूसरे इश्यूज के लिए हमेशा कम्युनिटी का सपोर्ट हमने देखा है कि आगे बढ़ चढ़ के वो लोग आगे आते हैं। लेकिन जब कभी किसी वाटर बॉडी को रिवाइव करने की बात है तो कम्युनिटी सपोर्ट उस लेवल पर नहीं आ पाता। यूथ में वो मोटिवेशन नहीं है। अगर हम किसी वाटर बॉडी को साफ करने जाएं या प्लांटेशन ड्राइव के लिए जाएं तो तब उतने बड़े नंबर में यूथ कई बार सामने नहीं आता है। इसके अलावा जो कॉरपोरेट या जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर बिल्डर्स हैं जिनको जो बहुत ज्यादा कई बार एनवायरनमेंट का डैमेज करते हुए दिखाई देते हैं या कहीं अंडरग्राउंड वाटर वेस्टेज करते हुए दिखाई देते हैं इलीगली, तो जब उनको रोकना या टोकना पड़ता है तो उस दौरान काफी थ्रेट होता है। तो इस तरह के इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं अभी भी।
उनमें से कुछ चीजें अब सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। जैसे अब पिछले 10 साल से काम करने के बाद कुछ अच्छे एक्सपीरियंस की वजह से कुछ चीजों को हम लोग आसानी से हैंडल कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं। Initially, he faced hurdles in receiving support from the local administration, but once he became renowned in his work as a conservationist, he started getting media attention, followed by the local administration support. As he progressed further in his passion for reviving water bodies, he encountered a new set of problems, like support from the local people. He says, I cannot really see the youth being motivated to revive water bodies. He also faces several threats and risks for trying to stop the destructive work of builders and industrialists, which is worsening the conditions of the environment. But now, with an experience of 10 years in his work, he is able to resolve some of these issues. Your enlightening words have brought a beautiful quote to my mind by Michael Jordan that obstacles don't have to stop you. If you run into a wall, don't turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around. And that's what you did, sir. By taking lots of risk to create awareness in your community regarding wetlands and to stop industrialists from destroying these wetlands. Sir, could you share about your SAFE initiative? How did you come up with it? What made you feel that such an initiative is needed for the environment? थैंक यू आरव। जहाँ तक सेफ के इनिशिएटिव्स की बात है तो हम लोग कुछ ग्राउंड लेवल अप्रोच है, कुछ पॉलिसी मैटर है, कुछ लिटिगेशन वर्क है। इन इन तीन तरह से हम लोग अपने एनवायरमेंटल इश्यूज या वाटर रिलेटेड इश्यूज के ऊपर डील कर रहे हैं। और अगर हम ग्राउंड लेवल इनिशिएटिव्स की बात करें तो हम लोग वाटर अवेयरनेस के लिए जल पंचायत एक तरह से गांव-गांव में या आरडब्ल्यूज में जाकर के लगा रहे हैं। जल पंचायत का मतलब है कि वाटर मीटिंग्स। वाटर मीटिंग्स के माध्यम से हम लोग लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वाटर का मिसयूज ना करें, वाटर कंजर्व करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने प्रेमाइसिस में करें, या फिर जो वाटर बॉडीज हैं उन्हें पॉल्यूट ना करें। तो इस तरह के एनवायरमेंटल इश्यूज पर या वाटर रिलेटेड इश्यूज पर हम लोग वाटर मीटिंग्स होल्ड कर रहे हैं। अराउंड 100 वाटर मीटिंग्स हम पिछले कुछ सालों में ऑर्गेनाइज कर चुके हैं दिल्ली एनसीआर में। इसके अलावा वाटर बॉडी रिवाइवल एक हमारा इनिशिएटिव है ग्राउंड लेवल पे, जिसमें हम कम्युनिटी या कॉर्पोरेट या सीएसआर के थ्रू हम लोग वाटर बॉडीज को रिवाइव या क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि डेड वाटर बॉडीज या फिर डेबरी से पूरी तरह भर चुकी वाटर बॉडीज को एक तरह से दोबारा उनको रिवाइव करना या उनको उस लायक बनाना कि लोग वहां जा सके, घूम सके और अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। क्योंकि अभी काफी अनट्रीटेड फ्लुएंट वाटर बॉडीज में जा रहा है, तो हमारी कोशिश है कि एक प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक नेचुरल ट्रीटमेंट के बाद जो अनट्रीटेड इफ्लुएंट है, डोमेस्टिक इफ्लुएंट है, वो वाटर बॉडीज तक पहुंचे। तो इसके अलावा जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स उसमें आ गए हैं वाटर बॉडी में या प्लास्टिक आ गया है, उसके लिए कुछ इंतजाम किए जाएं। तो ये वाटर अवेयरनेस, वाटर बॉडी रिवाइवल। इसके अलावा हम लोग जो ग्राउंड लेवल इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो प्लांटेशन ड्राइव्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें अराउंड 10,000 सैपलिंग्स हम एनुअली लगाते हैं और उनको इंश्योर करते हैं कि सैपलिंग्स ट्रीज में कन्वर्ट हो सके। क्योंकि सैपलिंग्स लगा देना काफी नहीं है, उनको अडॉप्ट करना, उनको मेंटेनेंस प्रॉपर करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट ले रहे हैं और लगातार ज्यादा से ज्यादा सैपलिंग्स लगाने की कोशिश करें। तो प्लांटेशन ड्राइव भी एक हमारा इनिशिएटिव है। और वेटलैंड्स के लिए हम लोग काम करें, जैसे सूरजपुर वेटलैंड एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे इनिशिएटिव्स में से। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसके आसपास काफी रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, जिस वजह से अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीशन तेजी से हो रहा है, ग्रीनरी लॉस हो रही है। उस वेटलैंड के अंदर कंक्रीटाइज किया जा रहा था,
जिससे कि उसको काफी लॉस हो रहा था। ट्री कटिंग शुरू हुई, वहाँ वाइल्ड लाइफ को काफी दिक्कतें आई। तो उस सब को लेके हम लोग लगातार अगर हमने पहले ग्राउंड लेवल इनिशिएटिव्स लिए, उसकी क्लीनिंग के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किए कि कैसे उसे साफ किया जाए, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इस बारे में बात की। साथ ही साथ जब हमें लगा कि कुछ इश्यूज डील नहीं हो रहे, तो हम वेटलैंड के इशू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। पहले हमें एनजीटी से इंटरिम रिलीफ मिला, अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। इसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी लोगों को अवेयर किया जाए, तो हम लोग क्लाइमेट चौपाल भी ऑर्गेनाइज करते हैं और ऐसे रिमोट एरियाज में क्लाइमेट के बारे में लोगों को बताते हैं, जहां अभी क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज के अलावा हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल लिविंग या सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अच्छा माध्यम है, जिससे हम लोग नेचर को भी पॉल्यूट नहीं करते हैं और अपने जो वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं विदाउट केमिकल यूज किए, कम से कम पानी में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक हमारा इनिशिएटिव है, जिसके तहत हम एक पूरे विलेज को ऑर्गेनिक विलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें लगभग 40 एकड़ लैंड हम ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर चुके हैं, जिससे एनवायरनमेंट को काफी बेनिफिट हो रहे हैं, लोगों को केमिकल फ्री वेजिटेबल्स भी मिल रहे हैं। तो इस तरह के मल्टीपल इनिशिएटिव्स पर हम लोग, चाहे रिवर्स की बात हो, रिवर के जो बैंक है वहां बहुत ज्यादा प्लास्टिक आ गया है, उसको क्लीन करने की बात है, जिसे बीच क्लीनिंग, रिवर बेड क्लीनिंग कह सकते हैं। तो रिवर्स, वाटर अवेयरनेस, वेटलैंड्स, और ये आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्लाइमेट चेंज या वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरह के मल्टीपल इश्यूज पर हम लोग एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। According to Mr. Tongar, SAFE focuses on environmental and water-related issues through three approaches. One, ground level work. Second, policy matters. And third, litigation work. SAFE's ground level initiatives focus on water awareness, forming Jal Panchayats or water meetings in villages and residential societies to encourage people to conserve water through rain harvesting. In past few years, SAFE has organized nearly 100 water meetings in and around Delhi. Apart from this, SAFE has another initiative called Water Body Revival through CSRs and communities to clean or revive water bodies filled with debris or are dried up so that groundwater can be recharged and people can come and enjoy the beauty of these water bodies. SAFE also organizes plantation drives and plants 10,000 saplings annually and ensure to turn them into mature trees through the local community participation. Mr. Tongar stated one of his best wetland revival projects at Surajpur, Greater Noida, where real estate projects and deforestation has led to concretizing the wetlands, due to which the groundwater is depleting at fast pace and endangering the wildlife. SAFE tried to approach the forest department to get support for wetland revival, but it was huge hurdle to get the required support. They approached to National Green Tribunal and then Supreme Court of India, where this matter is still in progress. SAFE also organizes climate chopals in rural areas for climate change awareness. They are also advocating organic farming, which is an efficient and sustainable medium to protect the nature. In this way, they have transformed 40 acres land of a village from inorganic to an organic land. In this way, SAFE has adopted the holistic approach to protect the environment. Your initiatives to make our environment better by creating awareness about climate change, plantations, forming Jal Panchayats, and protecting wetlands have inspired us a lot and lessened us to feel the problems
and come up with the solutions to tackle them efficiently. I'm sure that SAFE will continue to bring environmental justice to communities under your leadership. Sir, how do you carry out the process of pond revival? What are the specific needs to carry out the restoration? आरव, जहां तक पॉन्ड रिवाइवल की बात करते हैं, पॉन्ड रिवाइवल भी एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है और इसको हम कैजुअल तरीके से नहीं कर सकते। जैसा कि जर्नली कई बार देखने में आ रहा है कि बहुत कैजुअल तरीके से पॉन्ड्स को रिवाइव किया जा रहा है अनसाइंटिफिक तरीके से, विदाउट प्रॉपर डेटा। उस वजह से अंडरग्राउंड वाटर और पॉल्यूट हो रहा है, क्योंकि वाटर बॉडीज के पॉल्यूट होने की वजह से अनट्रीटेड इफ्लुएंट सीधे वाटर बॉडीज में या पॉन्ड्स में जाने की वजह से एक तरह से अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है, जिससे वाटर बॉर्न डिजीज हो रहे हैं, एनवायरमेंट को भी और हेल्थ को भी, दोनों को नुकसान है। तो इसके लिए हम लोगों ने भी स्टडी किया, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लिए, रिसर्च जो ऑलरेडी हो चुके हैं वाटर बॉडीज के बारे में उन सबको स्टडी किया, क्योंकि हम ये हमारा डोमेन नहीं था, ये पूरा एक्सपर्ट सब्जेक्ट है। तो इसके अलावा हमने फील्ड विजिट किए। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल आजकल इंडिया में माना जाता है संत बलवीर सिंह सीचेवाल, जिन्होंने एक रिवर को रिवाइव किया था और पूरी नदी को पुनर्जीवित किया कम्युनिटी लेवल पे पंजाब में, जिन्हें पद्म श्री भी दिया गया है इंडिया गवर्नमेंट द्वारा। तो हमने पंजाब में जाकर उनके रिवर से जुड़े हुए इनिशिएटिव्स और वाटर बॉडीज को किस तरह वो रिवाइव कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने 3 टैंक मॉडल अडॉप्ट किया है जो नेचुरल ट्रीटमेंट का, जो कि गंदा पानी आता है तालाब की तरफ उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई ऐसे मॉडल हम लोगों ने जगह जगह जाके, इंडिया के कई जगहों पर जाकर के देखे कि किस तरह से विदाउट एसटीपी, क्योंकि एसटीपी के लिए ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज्यादा फंड चाहिए, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसमें, तो बिना एसटीपी लगाए कैसे तालाबों को रिवाइव किया जाए। तो तालाब को लेके 2 मेन चीजें आती हैं। एक तो जो तालाब में एग्जिस्टिंग जो पॉल्यूटेंट्स हैं, प्लास्टिक है, वाटर हायसिंथ है, ये डिपेंड करता है किस लोकेलिटी में है। कई बार इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट भी उसमें आता है वाटर बॉडी में। तो पहले ये देखा जाता है कि उस वाटर बॉडी के अंदर कितना एक तरह से गंदगी है या प्लास्टिक है, वाटर हायसिंथ है, और दूसरा जो उसमें रेगुलर कंटिन्यूअस जो पॉल्यूशन आ रहा है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे फ्लोटिंग आइटम्स हो, प्लास्टिक वगैरह, उन दोनों पर काम किया जाता है। जो वाटर बॉडी के अंदर गंदगी है, जमी हुई है या ऊपर घूम रही है, तैर रही है, फ्लोट कर रही है, उसको कैसे हटाना है, या जो आ रहा है कम्युनिटी की तरफ से या इंडस्ट्रियल क्लस्टर की ओर से, उसको कैसे रोकना है या ट्रीट करना है। तो सबसे पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेना होता है, और उसके बाद हम लोग जो एक ट्रेंड लेबर है जो इसमें एक तरह से क्वालिफाइड है, वो अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं पर उनका एक एक्सपीरियंस होता है, वो कुछ खास जगहों पर रहती है लेबर जो पानी में काम कर सकती है वाटर बॉडीज में, उनसे कांटेक्ट किया जाता है और वो लोग वाटर हायसिंथ या जो भी उसमें वीड्स हैं या जो वनस्पतियां हैं वाटर बॉडी के ऊपर, उनको बाहर निकालते हैं, जिससे कि वाटर बॉडी के ऊपर जो सनलाइट आ रही है डे टाइम में वो नीचे तक जा सके। क्योंकि हो क्या रहा है कि वाटर बॉडी ऊपर से इंडिया में अमूमन देखा गया है कि पूरी तरह कवर हो गई है, तो जो एक्वाटिक लाइफ है, जो वाटर के अंदर की जो लाइफ है, वो एक तरह से डेड हो चुकी, क्योंकि जितने भी फ्लोटिंग आइटम्स है, वाटर हायसिंथ वगैरह वाटर बॉडी के ऊपर, वो नीचे नहीं जाने दे रहे सनलाइट को। तो सबसे पहले उस ऊपर तैरती हुई गंदगी को निकाला जाता है, जिससे प्रॉपर सनलाइट नीचे तक जाती है, और जरूरत पड़ती है तो डीसिल्ट किया जाता है, क्योंकि वाटर बॉडीज की पिछले 2-3 डिकेड से कोई डीसिल्टिंग नहीं हुई है ज्यादातर हिस्सों में देश के। तो जरूरत होने पर डीसिल्ट किया जाता है, उसका एरिया बढ़ाने की कोशिश की जाती है अगर कोई पॉसिबिलिटी है, जिससे ज्यादा पानी उसमें आ सके। और रेन वाटर जो आसपास जो कैचमेंट एरिया है, कोशिश की जाती है अगर जरूरत है तो कैचमेंट एरिया का पानी जो रेन वाटर है वो आ सके। और इसके अलावा इस तरह से सफाई करने के बाद उसके चारों तरफ प्लांटेशन या वॉकवे बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कम्युनिटी आ सके, लोग आ सके, घूम सके, बेंचेस लगाए जाते हैं जिससे कि लोग बैठ सकें, डस्टबिन लगाए जाते हैं। तो इस तरह से उसको होलिस्टिक अप्रोच में एक तरह से डेवलप और क्लीन किया जाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पानी नीचे जा सके, परकुलेट हो सके, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सके, और उसमें आगे गंदगी ना आए उसके लिए डस्टबिन लगाए जाते हैं। और जो
अनट्रीटेड फ्लुएंट कम्युनिटी की ओर से आ रहा है, उसको 3 चैम्बर बना के पहले एक कंक्रीट चैम्बर बनाया जाता है, कुछ आइटम्स उसमें रुकते हैं, कुछ पॉल्यूटेंट्स उसमें रुकते हैं जो फ्लोटिंग आइटम्स हैं। उसके बाद वो दूसरे चैम्बर में जाएगा, पानी जितना भी गंदा आ रहा है, उसके बाद थर्ड चैम्बर में फाइनली फिर वाटर बॉडी तक पानी पहुंचता है। तो ये एक प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाता है जो डोमेस्टिक सीवेज आ रहा है, जिससे कि सीधे गंदगी तालाब में ना जाए, चाहे वो फ्लोटिंग आइटम्स हैं या फिर वो डस्ट या दूसरे तरह के पॉल्यूशन। तो ये एक कम्युनिटी लेवल पर एक प्राइमरी रिवाइवल ऑफ वाटर बॉडी है, जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। लगभग 1 दर्जन वाटर बॉडीज पर इस तरह से काम हुआ है पिछले कुछ सालों में सेफ के थ्रू, जिसमें लोकल एजेंसीज का सपोर्ट दिया गया, कॉर्पोरेट का और कम्युनिटी का, और उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन अभी बहुत सारे वाटर बॉडीज खासकर एनसीआर या देश के हिस्सों में बाकी हैं, जिन पर काम करने की जरूरत है। Mr. Tongard states that the process of pond revival is quite scientific and cannot be dealt casually. He says people generally revive the ponds unscientifically, without any proper knowledge, which is affecting the underground water and leading to many waterborne diseases. To address these problems, they took the opinions of experts and also researched about it. They also visited many fields in India and learned about them. He also mentioned about Sant Balveer Singh, who revived a river in Punjab through community participation. He was awarded Padam Shri by the Indian government. He also studied the three tank model adopted by Sant Balveer Singh. He then visited other such models all around India, which are without STP and which needs more funds and government involvement. Mr. Tongod states that to revive the wetlands, they need to work on two areas. One is gathering information about the existing contaminants and pollutants in it, like water hyacinth, plastics, effluents, etc., and removing these pollutants. Second one is gathering the data of the pollution flowing into the river continuously and also stopping the flow of it to revive the water body. To revive the pond, they need to take permission from administration and skilled labor specialized in this work. These laborers help to remove the plastics and water hyacinths floating on the water so that the sunlight can reach the bottom of the wetland. They also desilt the water body when needed. They also try to increase the area of the wetland for more rainwater to pour in it. They try to make the rainwater flow into the body through the catchment. They carry out plantations around the water body, construct a walkway, place benches and dustbins for the people. Overall, they clean the wetland through a holistic approach so that more water can flow into the wetland to recharge groundwater and improve the condition of the wetland. They have also created the three chambers for the public effluents to purify the water before entering the water bodies. That's how a wetland revival process is done on the community level by SAFE. Mr. Dongor has worked on many such pond revival projects from many years with the help of local agencies, corporates, etc., resulting in the betterment of the ponds. He says that still many water bodies are left around Delhi NCR which need maintenance and a lot of work to revive. The hard work and the time you're investing in reviving ponds by exploring the science behind it, learning about execution, gathering data about the ponds, and receiving permission of the government is really commendable. And I'm sure it will pay off for the future generations slowly but steadily. Sir, what other things you do for the betterment of environment other than restoring the wetlands?
इसके लिए जैसा अभी मैंने पीछे भी मेंशन किया कि ये पूरा अप्रोच जो है मल्टीपल अप्रोच है, क्योंकि एनवायरनमेंट को ये बेटरमेंट के लिए काम करने की जब बात की जाती है तो हमें एयर, वाटर, सॉइल और ह्यूमन टेंडेंसी, इन तीनों चारों चीजों पे काम करना होता है। ह्यूमन टेंडेंसी का भी मैंने मेंशन किया क्योंकि कई बार लोगों की ये आदत बन गई है कि जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को एक तरह से मिसयूज किया जा रहा है, जैसे एनर्जी का जो है मिसयूज हो रहा है, वाटर का मिसयूज हो रहा है, या फिर जरूरत से ज्यादा उस चीज की बर्बादी हो रही है, तो उसके लिए भी हम लोगों को काम करना होगा, जिससे लोगों के डेली लाइफ स्टाइल में चीजें चेंज हो सके, बिहेवियर चेंज हो सके, और वो लोग एनर्जी को सेव करें, वाटर कंजर्व करें। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल वे में और होलिस्टिक अप्रोच में एनवायरमेंटल इश्यूज पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वेटलैंड्स या एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेटलैंड्स का जैसे मैंने पीछे मेंशन किया, वाटर बॉडीज का मेंशन किया, किस तरह से उन पर काम हो रहा है। पर जैसे एयर पॉल्यूशन की बात करें तो ओपन बर्निंग को रोकने के लिए हमने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि दिल्ली एनसीआर में, चाहे नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें, वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर अभी कुछ कुछ भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए गए हैं, और ना ही कोई साइंटिफिक प्रोसेस है गवर्नमेंट लेवल पे वेस्ट सेग्रीगेशन की, या वेस्ट मैनेजमेंट की, या वेस्ट हैंडलिंग की। उस वजह से वेस्ट को ओपनली बर्न किया जाता है इधर उधर डाल के। तो उस ओपन बर्निंग की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, सॉइल कंटेमिनेशन होता है, और जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, एयर क्वालिटी लगातार बढ़ती जा रही है। तो उस चीज को रोकने के लिए हमारे वॉलंटियर्स लगातार जब भी कहीं जा रहे होते हैं अपने रूटीन वर्क से, तो वो एक तरह से ध्यान में रखते हैं कि अगर उन्हें कहीं ओपन बर्निंग दिखाई देती है तो तुरंत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इन्फॉर्म करना, लोकल एजेंसीज को इन्फॉर्म करना। तो इस तरह की ट्रेनिंग हमने अपने वॉलंटियर्स को दी हुई है। या बहुत सारे एप्स आ गए हैं, गवर्नमेंट ऐप भी हैं जिन पे लोग कंप्लेन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम ओपन बर्निंग को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, कि किस तरह से ओपन बर्निंग को रोका जा सके। और केवल इन्फॉर्म ही नहीं करते, हम कहीं बर्निंग देखते हैं जब, उसको फायर सर्विस को बुला करके उस ओपन बर्निंग को तुरंत स्टॉप करते हैं। क्योंकि जनरली हमने ये देखा है, जैसे कहीं आग लग रही होती है किसी कूड़े में, तो लोग निकल जाते हैं, लोग देखते हैं, लेकिन इसको कॉल नहीं करते हैं कई बार पुलिस को। जबकि उसको रोकना जरूरी है, चाहे छोटी ओपन बर्निंग हो चाहे बड़ी, दोनों में हम लोग इन्फॉर्म करते हैं लोकल एजेंसीज को, और उसको तभी वहां आग को एक तरह से बंद करवाते हैं। तो ये काफी इफेक्टिव रहा है हमारे यहाँ पर एयर पॉल्यूशन के लिहाज से। इसके अलावा हम लोग जो स्टबल बर्निंग होती है, क्योंकि 2011-12 में हम लोगों ने एनजीटी में ये इशू रखा, वहां ये मुद्दा उठाया कि जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में, दिल्ली के आसपास काफी स्टबल बर्निंग होती है एग्रीकल्चर फील्ड्स में, या ओपन बर्निंग होती है, वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट बर्निंग भी बोल सकते हैं उसको। उस वजह से दिल्ली को भी काफी पॉल्यूशन आता है, और वहां लोकली भी काफी पॉल्यूशन होता है। तो एनजीटी ने उसको एक तरह से बैन किया, और मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है। और आज ओपन बर्निंग या स्टबल बर्निंग एक क्राइम है, और उसके ऊपर फाइन भी किया जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने फार्मर्स को कुछ सब्सिडी भी दी है, हालांकि वो सफिशिएंट नहीं है, और उस पर गवर्नमेंट की तरफ से काम करने की जरूरत है, किसान भाइयों को और जागरूक करने की जरूरत है। तो एयर पॉल्यूशन रिलेटेड, वाटर बॉडी रिलेटेड, वेटलैंड से रिलेटेड, या अवेयरनेस कैंपेन हुए। तो इसके अलावा जो आजकल वाटर बॉडीज में वाटर हाइसिंथ जो बहुत हो रहा है, जो एक एक वनस्पति है, जिस वजह से हमारी वाटर बॉडीज को बहुत नुकसान हो रहा है, पूरे देश की बात करें, तो उसके पीछे हमने थोड़ा रिसर्च किया, तो हमें ये जानने में आया कि ये जो फॉस्फेट का लेवल बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं डिटर्जेंट्स में जो फॉस्फेट लेवल बढ़ा हुआ है वो हमारे वाटर बॉडीज तक पहुंच रहा है। उस वजह से पॉल्यूशन, ये वाटर हाइसिंथ हो रहा है। वाटर हाइसिंथ वाटर बॉडी के ऊपर ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं वाटर बॉडीज में। जो एक्वाटिक लाइफ है वो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आ रही है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे फॉस्फेट के लेवल को डिटर्जेंट्स में इंडिया में लिमिट में किया जा सके। अगर उसका लिमिट परमिसेबल लिमिट में रहेगा, जो यूरोप में जो परमिसेबल लिमिट है कि डिटर्जेंट्स में फॉस्फेट का लेवल क्या हो, अगर इंडिया में भी उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज में फॉस्फेट कम पहुंचेगा और वाटर हाइसिंथ कम होगा, जिस वजह से वाटर बॉडी काफी सुरक्षित हो सकती है।
तो इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं जिन पर हम सेफ काम कर रही है। Mr. Tongar is benefiting the environment with multiple approaches. He states that to work for the betterment of the environment, one needs to focus on air, water, soil, and human tendency. Human tendency is his priority because awareness about climate issues should be spread among the people who are overusing and exploiting the natural resources. With his initiative SAFE, Mr. Tungar is tackling air pollution by taking actions on open waste burning, which is still a problem due to poor waste management in the society. Mr. Tongar briefs us about how open waste burning can cause soil contamination, resulting into a widespread of diseases and health hazards. He tells us how SAFE's volunteers always keep in mind to inform cases of open burning to the government apps, Pollution Control Board, and other local agencies. Mr. Tongar says that such climate actions are needed because nowadays these problems in our society are unseen by the passers-by and pedestrians. SAFE has also raised the issue of stubble burning by the farmers of Punjab, Haryana, and Delhi in National Green Tribunal, to which NGT agreed to ban. This matter is still ongoing at the Supreme Court of India. Vikrant sir does not agree with the fine charged to the farmers by the government for the stubble burning, as well as he opens our eyes on how subsidization to the farmers by the government is not sufficient. SAFE has also taken a lead role in exploring the health hazards caused by the water hyacinth, which is the result of the increase in phosphate level in the water. SAFE is trying to alarm the government to set a permissible limit of phosphate level in detergents and soaps dumped into the water bodies. SAFE is also increasing awareness about these issues of soil, air, and water among the people so that they can also start taking actions. These were the initiatives taken by Mr. Tongar and his initiative SAFE to protect our environment. You have well stated that to create better conditions for the environment, we need to take actions for the betterment of air, water, land, and human tendency. I believe that the environment is made out of these four areas only. Sir, how are you getting people involved with you? जहाँ तक अरब इन्वॉल्वमेंट की बात है, हम लोग खासकर यूथ का इन्वॉल्वमेंट हमें चाहिए होता है क्योंकि हमारे ऑन ग्राउंड जो प्रोग्राम्स है, चाहे पॉन्ड रिवाइवल हो, चाहे वेटलैंड्स के रिवाइवल की बात हो या उनके वेटलैंड्स के लिए काम करने की बात हो या फिर ट्री प्लांटेशन की बात हो और अवेयरनेस कैंपेन हो, चाहे क्लाइमेट चौपाल की बात हो, जल चौपाल, इन सारे इनिशिएटिव्स में हमें यूथ का सपोर्ट चाहिए होता है और वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वॉलंटियर्स हम लोग थ्रू सोशल साइट हम लोगों को काफ़ी वॉलंटियर्स मिलते हैं। हम लोग जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं उसके बारे में अपने सोशल साइट्स के ऊपर हमारे सभी वॉलंटियर्स जो है या टीम मेंबर्स हैं वो सोशल साइट्स के ऊपर ये डिटेल्स डालते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट में पर्टिकुलर जगह पर कुछ हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो उसके लिए लोग सामने आते हैं इन्फॉर्मेशन के बाद। इसके अलावा बहुत सारे कॉर्पोरेट हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जिनके एम्प्लॉय चाहते हैं कि वो कुछ घंटे सोसाइटी के लिए या एनवायरनमेंट के लिए या नेशन के लिए कुछ सर्विसेज दें। जैसे दिल्ली में कई बार हम यमुना के किनारे जो रिवर बैंक क्लीनिंग है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें हमारे पास काफ़ी कॉर्पोरेट गुड़गांव से, दिल्ली से आते हैं, वहाँ पर हमें एक तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं एनवायरनमेंट के लिए। और इसके अलावा जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है एनवायरमेंटल इश्यूज पर, काफ़ी लोग गूगल सर्च करने के बाद हम तक पहुँचते हैं या सोशल साइट्स के ऊपर सर्च करते हैं वो लोग इन सब चीज़ों के बारे में, तो उन्हें हमारे रेफरेंस मिलते हैं या जो हमारे ऑलरेडी वॉलंटियर्स या टीम मेंबर हैं उनके रेफरेंस से लोग आते हैं। तो अब काफ़ी लोग एक तरह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि हमारा काम का दायरा बढ़ रहा है, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि एनवायरनमेंट के लिए आगे आना होगा, कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट के लिए करना होगा। लोग ये डिसीजन ले रहे हैं, उस वजह से
वॉलंटियर्स हमारे पास आ रहे हैं। Mr. Tongar talks about the involvement of the youth required by them for the groundwork, may it be pond revival, plantations, increasing climate awareness, organizing Jal Panchayat, and climate chopals. He says that SAFE approaches people through the medium of social media to become a part of their initiative. They also reach out to the people to volunteer with them by publishing information about their upcoming projects on their website. Employees of corporates also contribute in this cause by taking out a few hours for SAFE's projects in and around Delhi. With the increasing awareness about climate issues, people usually volunteer in SAFE. SAFE's members, as well as social media platforms, refer this initiative to many people, thus increasing the amount of volunteers day by day. You are doing a great job to make people aware about wetlands and gathering people from corporates and communities. In my opinion, more and more people need to become aware and join projects and initiatives like yours to play their part in rejuvenating wetlands. Mr. Tongar, are you getting any support from the government? What sort of support do you seek from the government? एक्चुअली जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्टार्टिंग में कई बार गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन जिस तरह से हम लोग लास्ट 10 ईयर से काम कर रहे हैं और लाइमलाइट में भी आ चुके हैं, शायद उसके बाद हमें सपोर्ट आसानी से मिल रहा है गवर्नमेंट की ओर से। हालांकि वो अभी सफिशिएंट सपोर्ट नहीं है, उससे ज्यादा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है हमें या और दूसरे एनजीओज को भी। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है, तो हमें जैसे गवर्नमेंट की ओर से, जैसे गवर्नमेंट के मल्टीपल डिपार्टमेंट से हमें रिक्वायरमेंट होती है सपोर्ट की। जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सपोर्ट चाहिए होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही होल्ड करता है वाटर बॉडीज को। वेटलैंड्स वाटर बॉडीज उन्हीं के अंडर आते हैं, क्योंकि वो रेवेन्यू लैंड है। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काफी सपोर्ट चाहिए होता है। तो जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे नंबर में जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमें सैपलिंग्स प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारी बातों पर बहुत सीरियसली जो हमारे कंसर्न आते हैं उनके सामने जो हम कंप्लेन करते हैं या उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन पास करते हैं कि पर्टिकुलर सोसाइटी में वहाँ वाटर वेस्टेज हो रही है या पॉल्यूशन हो रहा है वाटर का, या ओपन बर्निंग हो रही है, या किसी इंडस्ट्री में किस तरह से वायलेशन हो रहा है एनवायरमेंटल लॉज का, या लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारी कंप्लेंट्स को या हमारी इंफॉर्मेशन को बहुत सीरियसली और प्रायोरिटी पर लेते हैं। जैसे एक सीनियर ऑफिसर की कंप्लेन को सीरियस लिया जाता है, उसी तरह पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारी कंप्लेंट्स को कुछ सीरियस लेते हैं और उन पर एक्शन लेते हैं। इसके अलावा जैसे हमें वाटर बॉडी रिवाइव करने के लिए परमिशंस चाहिए होती है, क्योंकि उसी के बाद आप पॉन्ड के ऊपर जाकर के काम कर सकते हैं। पहले हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट का परमिशन लेना होता है, तो उसको हमें लेने में जब हम उनके यहाँ अप्लाई करते हैं, तो हमें, अगर हम दूसरे लोगों से कंपेयर करें तो हमें मतलब एक एनजीओ को कोई भी एनजीओ, केवल सेफ की ये बात नहीं है, उनको वो लोग परमिशन देते हैं। कई बार उसमें ज्यादा टाइम लगता है प्रोसेस में, लेकिन फिर भी उनकी ओर से सपोर्ट मिलता है। तो ये सब सपोर्ट हमें अभी तक मिलते रहे हैं गवर्नमेंट की ओर से। और इसके अलावा हमें क्या रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, तो हम यही कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट एनवायरमेंट, वाटर बॉडी, वेटलैंड, पेड़ों की, ग्रीन बेल्ट्स की कस्टोडियन या गार्जियन गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एयर को साफ रख सके, साफ पानी दे सके। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है सिटीजन्स का। तो गवर्नमेंट को करने की जरूरत है कि वो अपनी जिम्मेदारियां समझे और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज ऑफिसर्स ठीक से निभाएं, जिससे कि एनजीओज को काम करने की जरूरत ना पड़े, जिससे कि हम जैसे एनवायरमेंट कंजर्वेशनिस्ट की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और गवर्नमेंट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपर फुलफिल करें, उन पर काम करें, अपनी पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करें, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में बहुत पुअर है। इम्प्लीमेंटेशन से मेरा मतलब है, सपोज कोई वेस्ट मैनेजमेंट को लेके पॉलिसी बनी, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कोर्ट ऑर्डर आया, उसका ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो बहुत वायलेट किया जाता है उन लॉज को। तो इम्प्लीमेंटेशन पर अगर गवर्नमेंट काम करती है, तो साफ हवा, साफ पानी लोगों को मिल सकता है। और साफ हवा, साफ पानी और साफ खाना
ये सबका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम साफ हवा और साफ पानी के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। सेफ का भी मोटिव यही है, सेफ एनवायरमेंटल जस्टिस के लिए काम कर रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। Mr. Tongar says that after becoming a renowned environmentalist, he is getting support from the government, unlike the time he began climate activism. He tells us that the support provided by the government is not sufficient, but departments of government such as Revenue Department, Forest Department, and Pollution Control Board are taking his issues and supporting his pond revival projects with sincerity and seriousness, which is really important. Mr. Tongar states how the administration gives SAFE the permission to revive the pond with full support, although it takes a little bit of time. He says that the government shall become a guardian for the green belts, water bodies, wetlands, forests, and other important ecosystems in India. Government needs to understand their responsibility towards the environment and fulfill them so that there is no need for NGOs and environmentalists. And government also needs to work on the implementation of the environmental laws and orders by the court. Because right now our government is not doing a great job in implementation. A proper implementation can surely change the condition of environment in India. As you have said, sir, that you are getting support from the government, but they are themselves not doing enough to protect the environment. And I think it is the responsibility of the government to play a major role in securing the environment by supporting environmentalists and climate activists like you. Sir, how do you see the future of the wetlands all across India? What is the need of the hour to save them? थैंक यू आरब फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वेटलैंड्स के ऊपर काफी बड़ा थ्रेट है इंडिया में, क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है, इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 4% वेटलैंड से कवर है। तो हमारे पास काफी बड़े नंबर में वेटलैंड्स है और काफी रिच वेटलैंड्स है मोस्टली हमारे यहाँ, लेकिन वो लगातार डिक्रीज होते जा रहे हैं, उनमें कमी आती जा रही है और उनके आसपास जो कैचमेंट एरिया वो लगातार डिस्टर्ब होता जा रहा है। वाटर बॉडीज या वेटलैंड्स भी डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। तो इंडिया में जो अभी के हालात हैं उनमें वेटलैंड का फ्यूचर काफी खराब दिख रहा है। अगर हम लोगों ने या पॉलिसी लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर, लोकल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर अगर वेटलैंड्स को लेकर के सीरियसनेस नहीं आती है तो वेटलैंड्स लगातार कम होते चले जाएंगे। क्योंकि अभी क्या थ्रेट है वेटलैंड्स के ऊपर? सबसे पहले तो वेटलैंड्स हैं क्यों? वेटलैंड लो लेइंग एरिया है। लो लेइंग एरिया में पानी इकट्ठा होता है और वो फ्लड से एक तरह से फ्लड आने से भी हमारी प्रोटेक्ट करता है। वेटलैंड का फायदा है कि वेटलैंड अगर होंगे तो फ्लड नहीं आएगा उस पर्टिकुलर एरिया में, मतलब उसके आसपास जो फ्लड आ रहा है वो वेटलैंड कंट्रोल करेगा, वहां पानी बारिश का आकर के रुकेगा। तो अभी जो डिस्टर्बेंस हो रही है कैचमेंट एरिया में, तो जो रेन वाटर है वो प्रॉपर वेटलैंड तक नहीं आ पा रहा है। या इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आ रहा है वेटलैंड्स में? कहीं ना कहीं उनके जो वेजिटेशन है, जो ग्रीनरी है वहां पर आसपास में, उसको भी डिस्टर्ब किया जा रहा है। या कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वेटलैंड्स के ऊपर आ गए हैं, वेटलैंड्स के ऊपर नहीं आए हैं तो वेटलैंड के कैचमेंट एरिया में आ गए हैं। कुछ रोड कंस्ट्रक्ट कर दिए गए हैं, जबकि प्रॉपर स्टडी करना चाहिए कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में वेटलैंड है तो उस वेटलैंड के आसपास अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो कोशिश किया जाए कि साइट उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को थोड़ा दूर किया जाए, जो एक सूटेबल लैंड हो वहां किया जाए। और अगर वेटलैंड के आसपास किया जा रहा है तो पहले वेटलैंड के ऊपर जो इम्पैक्ट होंगे या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे उनकी प्रॉपर स्टडी की जाए, क्योंकि वाटर चैनल रोके जा रहे हैं वेटलैंड्स के। इसके अलावा वेटलैंड के आसपास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पॉलिसी वाइज कोई लॉ नहीं है कि उसके आसपास कितने मीटर में या एक एडिक्वेट डिस्टेंस में कंस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग बनने से काफी नुकसान होता है। दूसरा, हमारे यहाँ वाटर रिक्वायरमेंट भी ग्राउंड वाटर से पूरी होती है, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो, चाहे डोमेस्टिक के लिए, चाहे इंडस्ट्रियल के लिए, ज्यादातर यही होता है। तो होता क्या है, वेटलैंड के आसपास इंडिया में देखा जा रहा है
कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं या हाउसिंग कॉलोनीज आ गई हैं या अनऑथराइज कॉलोनी आ गई है, वो अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वेटलैंड को उससे काफी दिक्कतें हो रही हैं। इतने अनसाइंटिफिक तरीके से एक्सेस अंडरग्राउंड वाटर निकाला जा रहा है थ्रू बोरवेल, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक पंप के थ्रू। मैनुअल अगर आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक तरफ एक हद तक एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से समरसेबल या बोरवेल करके अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, चाहे हम पर्टिकुलर ग्रेटर नोएडा की ही बात करें, वहां सूरजपुर वेटलैंड को काफी दिक्कतें आ रही हैं, उस वेटलैंड में काफी इफेक्ट देखे जा रहे हैं। अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, आसपास कंक्रीटाइज किया जा रहा है। तो वेटलैंड को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है इंडिया में, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ की रिक्वायरमेंट है, और उनके लिए रिसोर्स अरेंजमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट के लेवल पर गाइडलाइन तो बन रही है, लेकिन उस गाइडलाइन को, जैसे वेटलैंड रूल्स 2010 थे, उनको डायल्यूट करके, उनको वीक करके वेटलैंड रूल्स 2017 बनाए गए, जिसका काफी लोगों को फायदा उठा करके वेटलैंड को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ वेटलैंड मैनेजमेंट का कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। अभी यूएन में कमिट किया था, लास्ट जो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था पार्टीज का, यूएन पार्टीज का, ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में, यूएनसीसीडी बोलते हैं जिस बोला गया है जिसे। तो यूएनसीसीडी का जो कॉन्फ्रेंस था उसमें कमिटमेंट दिया है, 100 वेटलैंड्स की शायद बात की थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कि उनको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अभी 2-3 साल हो गए हैं, कोई खास उस पर काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जरूरत है कि एक स्पेसिफिक फंड हो वेटलैंड के लिए, ऑल ओवर इंडिया उस पर काम हो, और इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनकी देखरेख करता है वेटलैंड्स की। उनको अवेयर किया जाए, उन्हें ट्रेनिंग्स दी जाए, जिससे कि उनका स्टाफ और ज्यादा सेंसिटिव या एजुकेट हो सके वेटलैंड्स के बारे में, उन्हें बताया जाए कैसे वेटलैंड्स को बचाना है, कैसे प्रोटेक्ट रखना है। तो इन सब चीजों की जरूरत है अगर वेटलैंड्स का फ्यूचर इंडिया में अच्छा देखना है, और वेटलैंड का फ्यूचर अच्छा होगा तभी इंडिया का फ्यूचर अच्छा होगा। क्योंकि वेटलैंड ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के लिए, ग्राउंड वाटर को डेवलप करने के लिए, और लोकल इकोलॉजी को डेवलप करने के लिए, साथ ही साथ लोकल बर्ड्स और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्लड मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो वेटलैंड्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और बहुत सारे वनस्पति, बहुत सारी पेड़ों की प्रजातियां ये वेटलैंड्स की वजह से एग्जिस्ट करती हैं। अगर वेटलैंड्स डिसअपियर होते हैं तो बहुत सारी वनस्पतियां विलुप्त हो सकती हैं, बहुत सारी फिश विलुप्त हो सकती हैं, बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारी, एक तरह से इसका ओवरऑल एनवायरनमेंट के ऊपर काफी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। थैंक यू। Mr. Tongar thinks that there is a threat to the wetlands of India. He says that nearly 4% of India's land is covered with wetlands, but these wetlands are decreasing day by day because of the disturbance caused in their ecology by its destruction in the name of development. This narrows down to a future which is not ideal for wetlands. Mr. Tongar says that unless and until we do nothing on a ground and a political level, the conditions will continue to worsen for the wetlands. Vikrant Sir explains, to create better future, we first need to understand the threats to the wetlands and water bodies. He says that wetlands are low-lying areas which help to collect the rainwater, but they are being blocked due to the disturbance of catchments near them. Another threat to the wetlands is unplanned deforestation of the vegetations around them for development of roads and construction. Authorities should keep in mind to study the wetland terrain and then sustainably make developments. Plus, the constructions near these wetlands are extracting the groundwater from them through electronic pumps. This causes groundwater depletion. Such effects can be seen in Surajpur wetland in Greater Noida. Mr. Tongar says that the awareness to save water bodies should be the priority of the government, and state laws should be made to protect the wetlands and ensure the reinforcement of these laws. Poor wetland management is another problem. He has given an example of a UNCCT conference in Greater Noida
where the Environment Ministry committed to protect 100 water bodies, but till now, no work has been done to protect them. We need a financial support from the government for wetland protection all over India for a better future of these wetlands because they help in preserving wildlife, aquatic life, groundwater, greenery, etc. Thus, wetlands are vital to nature. According to me, the future of wetlands depends on the involvement by the government, the policymakers, as well as the common man in securing a better future for the wetlands and better future for India. Sir, I have read a lot about your success in banning stubble burning by the farmers. So could you please elaborate on this note? थैंक यू आरव। जहाँ तक स्टबल बर्निंग की बात है, स्टबल बर्निंग के इशू को जैसा मैंने पहले मेंशन किया, हम लोगों ने टच किया 2011-12 में, और हम लोगों ने किसान भाइयों से बात की, उनके साथ जाकर डिस्कस किया। पंजाब, हरियाणा, यूपी के कुछ हिस्सों में हम लोग गए और देखा कि स्टबल बर्निंग क्यों किया जा रहा है, तो उसके रीजन हमें पता चले। और ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स में, रिसर्च में भी ये चीजें रिपोर्ट भी हुई हैं। पहले से इसके बारे में लगातार बताया जा रहा था कि स्टबल बर्निंग को जो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो किसान भाइयों से हमने फिर भी बात करने की कोशिश की, हमने उनसे डिस्कशन की है कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर लगातार अवेयर करती रही है। पहले से पिछले 20 साल से इस पर काम चल रहा है गवर्नमेंट लेवल पर, फार्मर ग्रुप्स की ओर से, लेकिन उसके बाद भी बर्निंग, स्टबल बर्निंग या एग्रीकल्चर वेस्ट की बर्निंग नहीं रुक रही है, जिससे एयर पॉल्यूशन वहां लोकली होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होती है, सॉइल में मॉइस्चर कम होता है, ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ दिल्ली या आसपास भी उसका पॉल्यूशन आता है। लेकिन फार्मर्स को फिर भी करना पड़ रहा है। कुछ फार्मर्स की मजबूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही जो फार्मर्स हैं वो सभी इतने रिसोर्सफुल नहीं है कि वो मशीनरी यूज करके या ज्यादा लेबर यूज करके उस एग्रीकल्चर वेस्ट को मैनेज कर सके। क्योंकि एग्रीकल्चर वेस्ट जो है उसको मैनेज करने के लिए या तो उसको कंपोस्टिंग किया जाए, या उसके पैलेट बनाकर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए, या बहुत सारी चीजें उससे बनाई जा सकती हैं। तो उसके लिए अलग से प्रोसेसिंग यूनिट लगानी होगी, या कम्युनिटी लेवल पर वो यूनिट लगाई जाए, गवर्नमेंट लेवल पर वो इनिशिएटिव्स प्रॉपर नहीं है, बहुत छोटे मोटे कुछ कुछ कहीं कहीं देखने को मिलता है जहां स्टेबल बर्निंग को मैनेज या यूज किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है। या फिर फार्मर्स इस स्टेबल को या एग्रीकल्चर वेस्ट को अपने कैटल के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कैटल के लिए भी बहुत बड़े कैपेसिटी में जब स्टेबल होती है तो नहीं यूज हो पाता है। तो इस सब को लेके हम लोगों ने बात की, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फार्मर्स ऑलरेडी बहुत बर्डन में है, उनको फसल का अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, जो दाम मिलना चाहिए, जो उनकी लागत आ रही है वो भी नहीं मिल पा रही, तो ऐसे में फार्मर्स से भी हम लोग ज्यादा नहीं कह सकते थे। तो हम लोगों को फिर कोर्ट जाना पड़ा, एनजीटी जाना पड़ा। एनजीटी ने 2015-16 में एक लैंडमार्क ऑर्डर दिया, क्योंकि हम लोगों का कहना था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से कि आप इसको रोकिए, क्योंकि ये एनवायरमेंटल लॉज का वायलेशन है स्टेबल बर्निंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट रेडी नहीं था, वो कहते थे कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का मैटर है, फार्मर्स का मैटर है, ये एनवायरमेंटल मैटर नहीं है। लेकिन एनजीटी ने हमारी बात को सही एक तरह से ठहराया और एनजीटी ने स्टेबल बर्निंग को बैन किया। इसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में वायलेशन माना, और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस कुछ हद तक बंद हुई है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े स्केल पे की जा रही है। और गवर्नमेंट ने भी कुछ सब्सिडी दी स्टेबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए, फार्मर्स को कुछ मशीनरी प्रोवाइड करने की बात की सब्सिडी के ऊपर, लेकिन वो काफी नहीं है। जैसे फार्मर्स इंसेंटिव की बात कर रहे हैं कि उन्हें पर क्विंटल या पर एकड़ कुछ इंसेंटिव दिया जाए, जिससे कि वो स्टेबल बर्निंग को कंट्रोल कर सके, उसे जलाने के बजाय दूसरी तरह से यूज कर सके। उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंस चाहिए, वो किसान मांग कर रहे हैं। बहरहाल अभी इस पर काम चल रहा है, मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, और इसमें जरूरत है कि किसान भाइयों की मजबूरी है, क्योंकि उन्हें जैसे एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने के लिए उनके पास टाइम काफी कम बच पाता है। तो ऐसे में वो एग्रीकल्चर वेस्ट को प्रॉपर साइंटिफिक वे में मैनेज करने की बजाय, उसको कंपोस्ट करने की बजाय उसको बर्न करना उनके लिए आसान है। तो उनके सामने भी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से वो ऐसा करे। इसके अलावा इस पर जरूरत है
कि हमें क्रॉप पैटर्न चेंज करने होंगे या क्रॉप जो अभी अभी हो क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा धान उगाया जा रहा है क्योंकि धान में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बर्निंग करनी पड़ती है। तो धान की बजाय दूसरी फसलें उगाने के लिए किसान भाइयों को मोटिवेट किया जाए या फिर व्हीट की स्ट्रॉ को जलाया जाता है मेनली, 2 स्ट्रॉ मेनली जलते हैं, राइस और व्हीट। कहीं-कहीं शुगर केन भी जलाया जाता है, जैसे वेस्ट यूपी की बात है। तो उन किसानों को थोड़ा-सा अवेयर करने की ज़रूरत है और उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि वो व्हीट को भी जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही उगाया जाए या राइस भी। और जहाँ ऑलरेडी वाटर का बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ शुगर केन या राइस उगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ दूसरे कुछ और क्रॉप उगाए जाएँ। तो अल्टीमेटली स्टेबल बर्निंग बहुत ही सीरियस इश्यू है और ये एक पॉलिटिकल इश्यू भी बन गया है और उस वजह से ये इश्यू अभी तक प्रॉपर सॉल्व नहीं हो पाया, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है और किसान भाइयों पर कुछ फाइन और एफआईआर किया जा रहा है जो कि सफिशिएंट मतलब जो कि एक कारगर कदम नहीं है। ज़रूरत है किसानों को एजुकेट करने की और ज़्यादा और उनको सपोर्ट देने की, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो और मॉरल सपोर्ट हो, उस तरह से इस इश्यू को डील किया जा सकता है। Mr. Tungar tells us that he started to notice this issue in 2012. He started with first talking about stubble burning with the farmers of Punjab, Haryana, UP, and Delhi. He discussed that even after awareness about stubble burning by the government, no one is putting a halt to this, causing local air pollution, soil contamination, etc. Farmers need to do it forcefully because they cannot afford the machinery to manage the agricultural waste. Government has not provided them with such facilities to compost the remaining stubble. He said that we cannot blame the farmers for this issue because they are not getting desirable rates for their crops, which is a responsibility of the government, as well as they need to start growing other crops immediately after harvesting. Although government has also provided them with some machinery as well as subsidies, it is not sufficient. Farmers are demanding for incentives by the government to manage the stubble burning. This matter is ongoing in Supreme Court of India. Another solution to this could be changing the crop patterns to produce less stubble, which is easy to manage. Stubble burning has become a political issue which is not being managed in a desirable way because farmers are being fined for stubble burning, which is not at all correct. The need of the hour is educating the farmers and supporting them financially and morally to stop stubble burning. It is a great story of how you discuss the problems of stubble burning with the farmers, how it is causing problems for the environment, how it is causing problems for the farmers who do not have the facilities to utilize the stubble, and how NGT agreed to your plea and banned stubble burning. But as you have said, that the implementation of these laws is not proper, since the farmers need to be educated, not fined for the stubble burning. And that's the topic on which the government need to focus on. So what youth climate activists need to do right now to protect the environment and vulnerable ecosystems? या आरव थैंक यू। ये काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि ये अभी तक हमने डायरेक्ट एनवायरनमेंट इश्यूज की बात की है इस इंटरव्यू में मेनली, और क्लाइमेट चेंज काफ़ी इसके बारे में काफ़ी बात हो रही है और ये बहुत बड़ा ग्लोबल थ्रेट है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। और जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा पर्सनल थॉट है कि अभी हम कोविड-19 जो एक पैंडेमिक है, उससे तो हम लोगों ने कुछ हद तक वर्ल्ड ने एक तरह से उस पर काबू पा लिया है, लेकिन जो अगला थ्रेट होगा, जो अगली पैंडेमिक या जो मेन थ्रेट है, वो शायद ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज ही होगा वर्ल्ड के सामने। और उससे निजात पाना या उसका सॉल्यूशन हम इतनी आसानी से नहीं देख पाएँगे क्योंकि उसमें बहुत सारी बीमारियाँ भी जनरेट होंगी और नई-नई तरह की बीमारियाँ आएँगी क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि मौसम में बदलाव आएँगे और जहाँ बर्फ पड़नी चाहिए वहाँ सूखा पड़ेगा, या जहाँ सूखा पड़ रहा है, पिछले रेगिस्तान है जहाँ, वहाँ बर्फ पड़ेगी।
तो या सी लेवल बढ़ेंगे तो कोस्टल एरियाज में जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, और एक तरह से माइग्रेशन बढ़ेगा। तो जिस तरह से माइग्रेशन बढ़ेगा, लोकल कम्युनिटीज के पास आकर के बहुत बड़े लेवल पर माइग्रेट होके आने वाली कम्युनिटीज रहेंगी, उनकी हैबिट्स, उनका रहन सहन, उनका कल्चर, खान पीन अलग तरह का रहेगा, और वो लोकल कम्युनिटीज के पास जब आएंगे तो उनका डिफरेंट होगा। तो बहुत सारे चेंजेस होंगे सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरल एंगल से और एनवायरमेंटली। तो इन सब को एडजस्ट करना और बहुत मुश्किल होगा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट, इन सब के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए भी, साइंटिस्ट के लिए भी। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है। तो जहां तक क्लाइमेट चेंज के लिए काम करने की बात है, तो यूथ को अगर इस पे कुछ करना चाहिए, तो क्लाइमेट चेंज के साथ एक और एक इशू है सबसे बड़ा, कि क्लाइमेट चेंज के लिए आप लोकली काम करके ग्लोबल लेवल पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल सकते। इस इशू के ऊपर मेरा जो पर्सनल व्यू है, इसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स इस पर काम करती है, स्ट्रांगली अच्छे से काम करते हैं वो लोग, सभी कंट्रीज को आपस में एकजुट कर पाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल कर पाते हैं, तो शायद इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। क्योंकि जो ओजोन लेयर में होल हुआ है उसको कंट्रोल किया जा चुका है, और इंडिया पोलियो मुक्त हो सकता है, और वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी बीमारियां रही हैं जिन पर काबू पाया जा चुका है। तो जब इस तरह के थ्रेट पर या इस तरह की प्रॉब्लम्स पर ऑलरेडी गवर्नमेंट्स ने, एनजीओज ने या पॉलिटिक्स ने ऑलरेडी इस पर काम किया, ऐसे कुछ इश्यूज पर काम किया, उन पर कंट्रोल आया है, तो ग्लोबल वार्मिंग पर भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि अगर वो लोग पॉलिसीज बनाते हैं कि हमें हमें ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कंट्रोल करना है, तो वहां से पॉलिसी बनेगी, तब जाकर चीजें ग्राउंड तक चेंज होंगी। क्योंकि जैसे इंडिया की हम बात करें तो अभी भी कोल बेस्ड एनर्जी पर फोकस किया हुआ है, जबकि कोल बेस्ड एनर्जी से हमें दूर जाना चाहिए। हमें ग्रीन एनर्जी की बात करनी चाहिए, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की बात करनी चाहिए, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो और सबको सफिशिएंट एनर्जी मिल सके और डेवलपमेंट भी हो सके। फिर भी यूथ का या क्लाइमेट एक्टिविस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट के लिए या जो एनवायरनमेंट पर काम करना चाहते हैं उनसे मेरा यही कहना है, उनको यही एडवाइस है, पर्टिकुलर जो क्लाइमेट के लिए एडवाइस है, कि क्लाइमेट चेंज को लेके दो इश्यूज हैं जो एक्सपर्ट सुझा रहे हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट आने शुरू हो गए हैं, उन उनके एडाप्टेशन के लिए, कि उनको कैसे अडॉप्ट कर सके लोकल कम्युनिटीज। जैसे कुछ ऐसे सेक्शन हैं जैसे फार्मर्स हैं जिनको क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि जैसे मौसम में बहुत बदलाव आ रहे हैं, तो उनके लिए हम कोई ऑल्टरनेट सोर्स, लाइवलीहुड सोर्स डेवलप कर सकें, या उन्हें एजुकेट या इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके कि वो बदलते क्लाइमेट में कैसे अपनी फसलें उगा सकते हैं। या जैसे हमारे मछुआरे भाई हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से या सी लेवल बढ़ने की वजह से या बहुत सारे चेंजेस की वजह से उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको कोई ऑल्टरनेट लाइवलीहुड का हम मेथड दे सकें। तो अडेप्टेशन पे काम करना होगा। दूसरा, जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार रीजन कारक हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पर काम करने की जरूरत है। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए हम लोग काम करें, तो यूथ एक्टिविस्ट यही कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी बढ़ाएं और कार्बन एमिशन के कंट्रोल करने के लिए एहतियात बरतें, अपने डेली लाइफ में कम से कम एनर्जी यूज करें। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कई बार अननेसेसरी फैन चल रहा होता है या लाइट जल रही होती है, उसको बंद करें। इसके अलावा कोशिश करें कि कम से कम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करें, कम से कम एनवायरनमेंट को लॉस हो, गाड़ियों का कम से कम उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। और बहुत सारे तरीके हैं, आप इजीली गूगल कर सकते हैं, जिससे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन सब चीजों पर काम करेंगे क्लाइमेट यूथ एक्टिविस्ट, तो शायद कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं। और हमें यहाँ पॉजिटिव रहना होगा। इस दुनिया ने बहुत बड़े-बड़े थ्रेट के ऊपर काबू पाया है तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी अगर लोग सामने आते हैं, जैसे ग्रेटा थनबर्ग, और जैसे आप खुद आप काम कर रहे हैं इसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज पर, तो इन सब पर काम किया जा सकता है, तो वहां से चीजें चेंज हो सकती। Climate change is a global threat and it is bound to be even bigger than this COVID 19 pandemic.
Global warming will bring drastic changes in our climate, economy, as well as in our social and cultural behaviors. This would be a challenge for the politicians, governments, and even scientists. This challenge cannot be solved by taking local actions. It needs the involvement of global politics. Global politics has already been a game changer to control diseases, conflicts, wars, and other such threats. Policies need to be made at a global level so that it could reach the ground level efficiently. Mr. Tongar stated that India, being a coal based country, need to focus on producing clean energy, which can only be done through implementing policies. He advises the youth climate activists to tackle this climate crisis in two ways. First, to adapt to a sustainable infrastructure for reducing the existing effects of climate change. Second, youth needs to focus and work on the main reasons of climate change by planting trees, reviving wetlands, preserving wildlife, decreasing greenhouse emissions, and adapt to renewable energy. Such actions can surely bring a required change in the society. And we all need to be positive in tackling this climate crisis because this world has overcome a lot of hurdles and we can overcome this too if more and more people stand together to tackle this major issue. Well said, sir, that the youth climate activists need to ensure their future by working on global politics, taking actions internationally, and also creating policies for preventing consequences of climate change. Because they are the ones who will suffer from the destruction we have caused. You have been a well rounded guest, and I'm sure that you will have success in making this earth a better place with rejuvenation of wetlands for all of us. At last, I would say that it is never too late to start with something. So start taking actions for Mother Nature, who is dying at the cost of our comfort and luxury. Thank you, everyone, and thank you, sir. थैंक यू आरव फॉर इनवाइटिंग। और ये काफ़ी अच्छा डिस्कशन था और मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी। और इसके अलावा आपका जो ओवरऑल इनिशिएटिव है एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए ग्राउंड लेवल या इस तरह के टॉक, ये काफ़ी इफेक्टिव है। और बहुत खुशी होती है कि आप इस एज में कम्युनिटी के लिए, एनवायरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेस भी आपके साथ है और हम लोग एक टीम की तरह इसमें आगे काम कर सकें। तो ऐसी मेरी एक तरह से इच्छा है कि हम लोग साथ में मिलके और अच्छा काम कर सकें एनवायरमेंट के लिए। थैंक यू अगेन। Thank you, sir. Thank you all for listening to this episode of Ring the Bell podcast. Hope it has been an amazing experience for you and would have found your takeaway from it. I feel nothing is perfect, but we should keep trying to make things perfect. So, if you feel I should add more sugar or salt to my podcast, do drop in your suggestions at rfc888@gmail.com. Till then, hasta luego.